Dear students, welcome back to lecture number 4 of solutions. Today we are going to start with, that is, solubility. What is meant by solubility? So to understand the concept of solubility, let us consider that in a container, that is in a beaker or something else, we have certain amount of water. You can say a specified amount of water. Suppose we add a solute. We add some solute to this. Say sugar. What you will observe? That sugar passes into this water. That is, in other words, we can say that sugar gets dissolved. चीनी आपकी इसमें घुल जाएगी. You add more of the sugar. You will see that that has again dissolved. This process is called dissolution. This process is called dissolution. That is, you add the solute to the solvent, it passes into the solution, that is dissolution. Now what happens is, when we add solid solute to the solution, due to random motion of particles, the solid particles, they will collide with the other particle and some of the particles may come out of this solution. That process is called crystallization. That process is called crystallization. जो इसमें आपके सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व थे, जब हमने इसमें और सॉल्यूट डाला तो रैंडम मोशन की वजह से द पार्टिकल्स विल कोलाइड एंड सम ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स मे कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन. उसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन. नाउ इफ वी कीप ऑन एडिंग द सॉल्यूट इन दिस सॉल्वेंट, दैट इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सून ए स्टेज विल बी रीच्ड. जल्दी हम एक ऐसी स्थिति को अटेन करेंगे जिसमें आपका रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, दैट विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इन अदर वर्ड्स वी कैन से नो मोर सॉल्यूट विल पास इनटू सॉल्यूशन. आप जो और सॉल्यूट डालेंगे वो सॉल्यूशन में नहीं जाएगा. एंड ए सॉर्ट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम विल बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट एंड द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन. सो दिस सॉल्यूशन व्हिच वी नाउ विल गेट will have the maximum amount of solute dissolved in a specified amount of solvent at a particular conditions of temperature, and this is called a saturated solution. This is called a saturated solution. ऐसे solution को हम saturated solution कहेंगे. And whatever is the amount of solute, which is the maximum amount, of course, the maximum amount of solute which is present in the solution at a particular temperature in a specified amount, that will be called the solubility of that solute in that solvent. Technically, we define the solubility as amount of solute in gram which is dissolved in 100 gram of solvent at a fixed temperature. And as I told you, that this is the maximum amount.
So if we write it as maximum amount, that will be better. So maximum amount of solute in grams which can be dissolved in 100 gram of a solvent at a particular temperature, at a fixed temperature, that is called the solubility. For example, we can say dissolve a gram of a solute and no more solute can be dissolved in 100 gram of water. Then we will say that the solubility of that solute is a gram per 100 gram of solvent. Remember that the solubility is a function of temperature, it depends upon temperature. So that is why we have to keep the temperature constant, or we have to keep the temperature fixed. As far as solubility is concerned, solubility of a solute, that depends upon the various factors affecting solubility of a solute. Of course, here I am taking the solubility of solid solute. Solid solute in solvent, that is liquid. So in fact I am talking about solutions of solids in liquids. तो हमारे पास जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, उनमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ solute and solvent. Nature of solute and solvent. The first factor which is going to affect the solubility, that is the nature of solute and solvent. Here you have to remember one thing, a simple principle: like dissolves like. Like dissolves like. या practically खुद भी देखते हैं, अगर आप अपने आसपास देखें कि आपके सबसे बढ़िया दोस्त कौन है और उनकी नेचर को और अपनी नेचर को कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि आपकी और आपके दोस्तों की, जो जहां पर आपके दोस्त हैं, उन सबकी जो नेचर है वो एक जैसी है। तो दो एक जैसी चीजें वो ज्यादा आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप होती हैं। सो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर सॉल्वेंट पोलर है, अगर पोलर सॉल्वेंट है, लाइक योर वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी पोलर सॉल्वेंट्स में आती है। पोलर सॉल्वेंट का पोलर सॉल्वेंट डजंट मीन वाटर. Of course, we are dealing mostly with the aqueous solutions, so we consider the water as the only polar solvent. There are so many other polar solvents. I have quoted one example, that is SO2. Liquid ammonia can also be considered in this. So, this polar solvent, if we are having, then they are best solvent for ionic compounds. जो हमारे ionic compounds होते हैं, like your NaCl, KNO3, KCl, they will be dissolving more in polar solvents. ये आपके polar solvents में ज्यादा घुलेंगे, और जो आपके covalent compounds हैं, covalent compounds, they are more soluble in non-polar solvents. Non-polar solvents like benzene, carbon disulfide, carbon tetrachloride, etc. उनके अंदर ज्यादा ये घुलेंगे. So, to explain why the like substances they dissolve with each other, let us consider the example of dissolution of sodium chloride in water. As you know, sodium chloride is an ionic compound. So there are sodium ion and chloride ion in sodium chloride, as we know, and they are
having a very strong forces of attraction between them, that is the electrostatic forces of attraction. Now what happens when solid sodium chloride is added to water? जब हम सॉलिड सोडियम क्लोराइड को पानी में डालेंगे तो होता क्या है, हमारा जो वाटर है दैट इज आल्सो ए पोलर कंपाउंड। तो जब हमारी सोडियम क्लोराइड को हम वाटर में डालेंगे तो हमारी आयन डाइपोल interactions will take place between dipole of water and ion of sodium chloride. Ion dipole interactions will be there. Remember that this sodium chloride will be dissolved if its lattice is broken. Lattice जब तक नहीं टूटेगा, हमको इसको lattice तोड़ना है, तो ये आपकी ion dipole interactions होंगी। जो पॉजिटिव सोडियम आयन है that will be surrounded by the, sorry, this charge I have wrongly written, this is oxygen पे minus, hydrogen पे plus, so this negative end of water, that is oxygen, that will surround the sodium ion. Negative ion will surround the sodium, negative pole, that is the end of dipole, and the positive end will surround the your chloride ion. So there will be a ion dipole interactions. तो यहां पे भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगा। This phenomena leads to breaking of this electrostatic force between sodium and chloride ion, and these two ions will get separated with some water molecules attached with them. इनके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होके आपका ये सोडियम आयन अलग हो जाएगा, क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। दिस आयन which is attached with some solvent particles, in this case of course water, they are called solvated ions. अगर सॉल्वेंट अदर देन वाटर हो तो हम इसको सॉल्वेटेड आयन बोलते हैं, जब वाटर हो तो इसको हम हाइड्रेटेड आयन बोलते हैं। So these hydrated ions get separated and when sodium chloride passes into the solution. अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हमारे ये आयंस सॉल्वेट होते हैं या हाइड्रेट होते हैं, a amount of energy is always released and that amount of energy is called hydration enthalpy. उसको हम बोलते हैं डेल्टा हाइड्रेशन H। और बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया था, जब सोडियम क्लोराइड बनता है इसका 1 मोल बनता है और 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन जब क्लोजली पैक्ड होते हैं क्रिस्टल लैटिस में टू फॉर्म ए क्रिस्टल लैटिस, तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जिसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। सो आपका कोई भी साल्ट पानी में कब घुलेगा, जब hydration enthalpy of ions will supersede the lattice enthalpy। जब हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा हो जाएगी तो हमारा साल्ट घुलेगा। अगर डेल्टा हाइड्रेशन H if it is more than lattice enthalpy, salt dissolves, तब आपका साल्ट घुलता है। और अगर आपकी लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा रहती है तो चाहे आप पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड डाल दें वो नहीं घुलेगा। फॉर एग्जांपल हमारा कैल्शियम फ्लोराइड है, इट इज एन आयनिक कंपाउंड, इट इज एन आयनिक कंपाउंड बट नॉट soluble in water, but not soluble in water। लेकिन ये पानी में नहीं घुलता, आयनिक कंपाउंड है, वी आर एडिंग टू इट टू ए पोलर सॉल्वेंट बट स्टिल इट इज नॉट डिसॉल्विंग। द रीजन फॉर दैट इज दैट लैटिस एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज हायर देन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। लैटिस एंथैल्पी कैल्शियम फ्लोराइड की हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा है, इसलिए कैल्शियम फ्लोराइड आयनिक होते हुए भी पानी में नहीं घुलेगा। नाउ
if we wish to study the effect of temperature and pressure on the dissolution of a solid in a liquid, let us rethink about the formation of solution. के सॉल्यूशन कैसे बनता है। इस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सॉलिड लिया, इसको हमने लिक्विड सॉल्वेंट में डाला, सैचुरेट सॉल्यूशन बना, इक्विलिब्रियम आया, आपका सॉल्यूशन बन गया। मतलब सॉलिड आपका सॉल्यूट दैट हैज पास्ड इनटू द सॉल्वेंट। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो ये सॉलिड घुला, इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड ही रहती है, चाहे ये सॉल्यूशन बन जाए। कभी आप सोचो कि सॉलिड पानी में घुल गया, लिक्विड में घुल गया, तो NaCl को डाला पानी में तो वो भी NaCl भी लिक्विड हो गया, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि किसी भी चीज की फिजिकल स्टेट बदलने के लिए हमें उसको हीट देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा फ्यूज करना पड़ता है मेल्ट करने के लिए। तो होता क्या है, जब डिसोल्यूशन होता है, द पार्टिकल ऑफ दिस सॉलिड दे आर डिसइंटीग्रेटेड, टूट जाते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, और इतने छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं दैट दे आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई एंड पासेस इनटू द कैविटीज ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर जो खाली जगह पड़ी होती है उनके बीच में ये जाके ट्रैप हो जाते हैं, तो इट रिमेन सॉलिड। अब हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी करना है, ये हमारा एक इक्विलिब्रियम है। इसमें अगर हम थर्मोडायनेमिकली सोचें तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ये हमने 11th में पढ़ा था, फ्री एनर्जी चेंज, कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने आप घुल जाएगा, अपने आप हो जाएगा वो प्रोसेस। अब जब कोई सॉलिड डिसॉल्व करता है सॉल्वेंट में, तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, रैंडमनेस इज लेस, और जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, सो रैंडमनेस हैज इंक्रीज। तो जब भी कोई सॉलिड किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता है तो रिमेंबर दैट फॉर दैट प्रोसेस डेल्टा एस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है तो ये डेल्टा एच जो लिखा हुआ है, इट इज आल्सो ए क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये भी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। ऑल्दो वी कैन हैव एन आइडिया कि व्हाट विल हैपन टू द डिसोल्यूशन। जैसे मान लीजिए किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा एच भी नेगेटिव है, अगर ये प्रोसेस है इसमें डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ही है। नेचुरल सी बात है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये फेवरेबल फैक्टर बढ़ेगा तो आपकी डिसोल्यूशन बढ़ेगी। बट द बेस्ट थिंग to explain the solubility is still the Lee-Chatelain principle. अभी भी थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा बढ़िया है कि हम ली-चैटलेन प्रिंसिपल से इसको स्टडी करें। तो अगर हमारा इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है तो क्या होगा, मतलब प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो अगर हम हीट बढ़ाएंगे तो ली-चैटलेन प्रिंसिपल क्या कहता है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन व्हिच नलिफाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज। हमने हीट बढ़ाई, हमारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, जिधर हीट कंज्यूम होगी, मतलब इधर जाएगी। तो जिन सॉल्यूट्स के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी विद राइज ऑफ टेम्परेचर, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो उस केस के अंदर हमारी इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, उनकी सॉल्युबिलिटीज बढ़ेंगी विद राइज ऑफ टेम्परेचर। अब प्रेशर पे आ जाइए आप, क्योंकि हमारे सॉलिड्स और लिक्विड्स दे आर नॉट मच कंप्रेसिबल, वो ज्यादा प्रेशर से दबते नहीं है, बिकॉज दे हैव वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, दे आर वेरी लिटिल कंप्रेसिबल और स्लाइट कंप्रेसिबल इन नेचर। सो प्रैक्टिकली प्रेशर हैज नो इफेक्ट। तो प्रेशर का जो है, pressure has no effect on solubility of a solid in liquid। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी का लिक्विड में प्रेशर का कोई भी किसी तरह का कोई भी प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा। अब अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से देखें कि सॉल्युबिलिटी
इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। तो हम जितने भी हमारे सॉल्ट्स हैं वी कैन डिवाइड देम इनटू 3 कैटेगरीज। हम उन सबको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन आर दोज सॉल्ट्स whose solubilities increases increase continuously with rise of temperature, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनकी सॉल्युबिलिटी लगातार बढ़े। ऐसे साल्ट फॉर एग्जांपल योर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, अमोनियम क्लोराइड का जो घुलना है पानी में, वो एंडोथर्मिक है। इसको आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अगर आप लैब में एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पानी लें और उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डाल के उसको शेक करें आप, तो आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब आपकी क्या हो गई, ठंडी हो गई। इट मीन्स आपने बाहर से तो हीट दी नहीं, तो एनर्जी इसको चाहिए थी घुलने के लिए, तो इसने एनर्जी कहां से ले ली, पानी से ले ली। सो टेम्परेचर ऑफ वाटर हैज फॉलन, तो आपकी टेस्ट ट्यूब क्या हो जाती है, ठंडी। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, उनकी जो डिसोल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी है, वो लगातार इंक्रीज करती है विद राइज ऑफ टेम्परेचर। और बहुत से साल्ट है इसमें, KNO3 भी एक और एग्जांपल है जिसके अंदर आपको ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। तो पहले टाइप के साल्ट वो हो गए जिनकी सॉल्युबिलिटी लगातार बढ़ती है विद राइज ऑफ टेम्परेचर, और इन सब के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। जो दूसरे टाइप ऑफ साल्ट्स हैं, साल्ट्स whose solubilities decrease continuously with temperature, जिनकी सॉल्युबिलिटी लगातार डिक्रीज करे विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो उनको हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपका सीरियम सल्फेट है। सीरियम सल्फेट इज वन ऑफ द एग्जांपल। सीरियम सल्फेट के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है। तो अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर एंथैल्पी डेल्टा एच नेगेटिव हो तो हमारा जो है वो बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी विद राइज ऑफ टेम्परेचर। लिथियम कार्बोनेट है, दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स। तीसरे टाइप के साल्ट्स जो होते हैं उनके अंदर सॉल्युबिलिटीज में ना तो रेगुलर डिक्रीज होता है ना रेगुलर इंक्रीज होता है, फ्लक्चुएशंस आपको दिखाई देंगी। जैसे सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट की अगर हम बात करें, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, अगर हम इसकी बात करें, टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है लगभग 37.2 डिग्री टेम्परेचर तक। उनके बाद इनकी सॉल्युबिलिटीज में जो चेंजेस है वो आपको डिक्रीज होते हुए दिखाई देंगे, कर्व। तो ये ऐसा तीसरे साल्ट के अंदर जो इस टाइप के साल्ट होते हैं जिनमें ना रेगुलर इंक्रीज करती है ना रेगुलर डिक्रीज करती है, मैं लिख देता हूं सॉल्युबिलिटी नाइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली, लगातार इंक्रीज या डिक्रीज ना हो, इनके अंदर चेंजेस आएंगे। अगर जैसे अगर आप करेंगे तो सोडियम सल्फेट का ग्राफ लगभग ऐसा सा है। आई एम नॉट ड्राइंग द एग्जैक्ट ग्राफ, बट फर्स्ट इंक्रीज करेगी और उसके बाद डिक्रीज करेगी। ऐसा इन केस में तब होता है जब या तो ये अपनी कोई एलोट्रोपिक फॉर्म बदलेंगे, ऐसे कंपाउंड या तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म बदलेंगे, या हाइड्रेटेड साल्ट से एनहाइड्रस साल्ट में कन्वर्ट होंगे, और उस टेम्परेचर को जहां पे ये अपनी फॉर्म को बदलते हैं उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर और ट्रांजिशन
temperature. The better word for this is transition. Transition से आपको याद रखने में आसानी रहेगी कि ट्रांजिशन होती है, इसमें किस चीज में ट्रांजिशन होती है, आइदर बिटवीन द टू फॉर्म्स और बिटवीन द हाइड्रेटेड साल्ट एंड एनहाइड्रेटेड साल्ट. सो ट्रांजिशन टेम्परेचर यू कैन से. तो ये अपनी फॉर्म को बदलेंगे. तो ये तीन कैटेगरीज में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. सो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस solubility of gases in liquids. Solubility of gases in liquids. The gases in general, they are very slightly soluble in liquids. For example, oxygen is only slightly soluble in water, but that dissolved amount of oxygen is sufficient for aquatic life to survive. To discuss the solubility of gases in a liquid, let us consider that in a container we are having a liquid and a gas over this liquid in a container which is fitted with a piston at which some pressure is applied. This is your piston and at this we are applying a pressure P. Now these gas particles will be colliding with the surface of the liquid and will pass into the liquid. That is, in other words, we can say that your gas will dissolve in this liquid and soon again we reach a dynamic equilibrium, of course at the solubility of gas in that liquid. The effect of temperature and pressure on the solubility of a gas is remarkable. It has been in journal observed that solubility of liquid gases in liquids increases with increase of pressure and it decreases with decrease of pressure, or you can say it also decreases with decrease of increase of temperature. टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है. अगर हम इसको समझना चाहें कि प्रेशर बढ़ाने के साथ आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस क्यों बढ़ती है, तो मान लीजिए हमने यही कंटेनर था, इस कंटेनर के ऊपर हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया और प्रेशर इंक्रीज करने से यहां पे हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं. नाउ द प्रेशर इज P2 and P2 is greater than P1. Now when we increase the pressure, what happens is the molecules of the gas above the liquid, they come closer and their rate of striking the surface of the liquid will also increase. Your equilibrium will be disturbed completely. So more of the gas particles will pass into the solution until and unless a dynamic equilibrium is again attained. अगर हम इसको वैसे भी देखें ली-चैटलेर प्रिंसिपल के हिसाब से, गैस प्लस सॉल्वेंट विच इज लिक्विड, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड. तो क्या हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है. ली-चैटलेर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम इसमें प्रेशर बढ़ाएंगे, then equilibrium will shift in that direction which will undo the effect of change. What we have done, we have increased the pressure. So what the equilibrium will try to do, it will try to decrease the pressure, and pressure will decrease if more of the gas will pass into the solution. That is, the solubility of the gas will increase.
अगर हम इसकी थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इसमें अगर हम डेल्टा S की बात करें तो डेल्टा S इज नेगेटिव बिकॉज gaseous state is more random than the gas particles in liquid solution. So delta S is negative, and for the dissolution of gas delta H is also negative. So if we will increase the temperature, this unfavorable factor will increase and the solubility should decrease. Solubility decrease करेगी. Effect of pressure को सबसे पहले स्टडी किया हेनरीज ने, और उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं हेनरीज लॉ। व्हाट इज दैट? दिस लॉ स्टेट्स दैट solubility of a gas in liquid is directly proportional to pressure of gas above liquid at a given temperature. किसी दिए हुए टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है गैस की। हेनरी के टाइम में ही जॉन डाल्टन ने इंडिपेंडेंटली ये देखा, उन्होंने भी यही चीज कंक्लूड की कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मैथमेटिकली हम इसको अगर लिखना चाहें, और अगर हम मोल फ्रैक्शन में लें, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस अगर हम मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करें, देन इट मोस्ट कॉमन फॉर्म योर हेनरीज लॉ कैन बी रिटन एज x इज प्रोपोर्शनल टू p, और p इज इक्वल टू kh into x, where kh is constant of proportionality, and it is constant of proportionality which depends upon the nature of gas and the temperature. It is the value of kh which decide about the solubility. Natural सी बात है, higher the value of kh, smaller will be the solubility, because product of kh and x should be equal to the pressure. So at a given pressure, if the value at a given temperature, if value of kh is high, then the solubility of gas will be less. So this is about the Henry's law. We will be discussing the rest of this and application of Henry's law in tomorrow's lecture. Thank you very much.